الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عرب میں بارش نہیں ہوتی تھی، بہت کم، اب بھی بارش کم ہوتی ہے، لیکن اب بارشیں زیادہ شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے بارشیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، بہت کم۔ قبولیت دعا کے لیے لوگ بارشوں کا انتظار کرتے تھے۔ کون سا لمحہ ایسا ہو، کون سی گھڑی ایسی ہو کہ بارش ہو اور اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ حدیث میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری آقا کا فرمان ہے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی۔ میرے ساتھ بولیں، بارش میں دعائیں قبول ہوتی۔ اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، جو فرشتہ جبریل وحی لایا وہ سچا، بارش میں دعائیں قبول ہوتی۔ میرے پاس سے قریب آدمی آیا، مجھ سے کہنے لگا یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ غربت، تنگدستی، اس نے اپنے حالات، مسائل اور مشکلات بتائے، بہت زیادہ۔ میں نے اسے ایک لفظ پڑھنے کو دیا، یا وہاب، یا وہاب رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا وہاب پڑھنے کو دیا۔ اور میں نے کہا کہ جب بھی بارش ہو اس میں دعا مانگ۔ مجھ سے کہنے لگا میں تو غریب آدمی، دعا کیسے مانگوں گا، ان پڑھ آدمی، دعا کیسے مانگوں گا؟ پھر میں نے اسے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، اور دعا کے ذریعے بارش کے ذریعے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ کیا خیال ہے آج وہی طریقہ اسی بارش میں کرنا لیں؟ نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ میں نے اسے کہا کہ اولا کو 3 دفعہ درود شریف پڑھ، اور 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، یا وہابوں کے وسیلے سے، یا وہابوں کے لفظ سے، یا وہابوں کے اسم سے، اور یا وہابوں کی طاقت سے، اور یا وہابوں کی تاثیر سے، اور یا وہابوں پہ اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین پر۔ یہ میرا لفظ آخری بڑا توجہ طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ یا وہابوں پہ جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین پر۔ اب ہم ایسے کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ آج کی محفل یہی ہے کہ کچھ جھولیاں بھر کے جائیں، آج کا درس یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں، آج کی آمد یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں، اور آج کی آمد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے سچے وعدوں سے فائدہ اور فیض پا کے جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس کے حبیب کے سچے وعدے، تو ہاتھ اٹھا کے پورے وجدان سے ڈوب کے اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلیں، اپنی روحانی جسمانی زندگی کے مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، ان کا تصور کر کے ڈوب کے بآواز بلند، بآواز بلند، بآواز بلند ڈوب کے ہم پڑھیں گے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں،
بارش ہو رہی، وعدے پورے ہو رہے، اللہ سچا اس کا حبیب سچا، مد ادھر توجہ کریں، بس اسی کی ذات سے لو لگائیں، وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، لٹے پٹے مسافر پردیسی آئے ہیں، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو رزق کا غم، کسی پہ صحت کا غم، ہمارے پاس تو سمجھاتے رہو حبیب سچا، اور اپنے انتظار کرتے تھے بارشوں کی، اور جب بارشیں ہوتی تھی پھر ڈوب جاتے تھے دعاؤں میں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یا وہاب۔ توجہ سے پڑھیں، اپنے مقصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات کا تصور کر کے، سر جھکا کے، ڈوب کے، اللہ سے لو لگا کے، یا وہاب یا وہاب۔ اور توجہ سے، آج اس بارش کی برکتوں سے لے کر جانا ہے، اس کے خزانے سے جھولیاں بھر کے جانی ہیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، اولادیں، پھر اولاد کا بخت لینا ہے آج اس بارش کی برکت سے، اور یا وہابوں کی برکت سے، پھر اولاد کا نصیب لینا ہے، یا وہاب یا وہاب۔ اللہ اس مجمع کی برکت سے جو تجھے پسند ہے، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی نیک بندی، کوئی سفید بال، کوئی توبہ کرنے والا، اللہ اپنا نام تجھے بڑا پسند ہے، اللہ اپنے نام کی پسندیدگی میں ہماری دعائیں قبول کر لے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اللہ اس اجتماعی دعا کو قبول کر لے اپنے نام کی برکت سے۔ آمین آمین۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بہت بڑی کمائی کر لی آپ نے۔ مخلصین جمع ہو، غور سے سمجھے گا، جن کا مقصود، جن کا مطلوب لا مطلوبی الا اللہ، لا مرحوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ مخلصین جمع ہوں، جن کا مطلوب اللہ اس کی محبت کو پانا ہے، یہ سارے جمع ہو جائیں۔ پھر جمع ہونے کے بعد اللہ کے نام کو وجدان سے پڑھیں، کسی کے دل کا درد، کسی کی روح کی کیفیت، کسی کے آنسو، کسی کے جذبے، یہ ساری کیفیات جمع ہو جائیں، اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر بارش کے وعدے سچے، اللہ کے وعدے سچے، یا وہابو۔ اب میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اصل میں عملیات روحانیت کی دنیا ایک پوری سائنس ہے، ایک پورا نظام ہے۔
जरूरी नहीं कि हर बंदे को समझ आ जाए, हर बंदे का अपना सब्जेक्ट है। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह का खानदान है, ये मैंने उनका हवाला दिया है, उनका अमल दिया है। शाह अहलुल्लाह और शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके घर में है, बालाकोट में। शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके बालाकोट में सो रहा है। शाह इस्माइल शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद, ये उनका अमल है कि बारिश हो और फिर कुछ लोग हों और फिर उन लोगों के दरमियान बैठ के और या वहाबों का जिक्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल का सबूत, हर अमल का हवाला, हर अमल का रेफरेंस है। अब आप एक बंदा कहे कि ये कहां लिखा हुआ है, तो सारा दिन मोबाइल देखे वहां तो लिखा हुआ नहीं है, जहां लिखा हुआ है वहां तो पढ़ता नहीं है। ये ताकतवर अमल आपने किया है। इस वक्त आपको मुबारक हो। बारिश के वादे, एक दरखास्त करूंगा आपसे, बारिश का पानी पिया करें, अपनी जिंदगी में शामिल करें। मैं घर में मुसलसल बारिश का पानी पीता हूं। वो लोग जो सिंध में रहते हैं, मैं अभी मिस्र में गया, बड़ा लंबा सफर किया मिस्र का बहुत लंबा सफर किया। पाकिस्तान से वापसी से अलग तक 8 फ्लाइटें तब्दील की, बहुत दूर दूर तक गया, बारिश नहीं होती। मुझसे कहने लगे कि मिस्र में बारिश साल में एक आध दफा होती है और चंद बूंदें गिरती हैं, हल्की बिल्कुल मुख्तसर बारिश होती है, बारिश नहीं होती। बारिश का पानी इकट्ठा किया करें। मैंने क्या तरीका किया है, क्योंकि लाहौर में बारिश होती है, आपके यहां तो बहुत ज्यादा होती है, वहां मैंने बर्तन रखे हैं, उन बर्तनों के जरिए जो है फिर पानी जमा करता हूं, फिर उनको कपड़े में छान लेता हूं। छानने के बाद मैंने डिस्पेंसर, ये बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, ये जो आजकल पानी मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, ये रखी हुई हैं, इनमें छान के बंद करके रख देता हूं और फिर वो बोतल डिस्पेंसर पे डाल के ठंडा गरम उसको पीता रहता हूं। आप उस पे ना रखें, इन बोतलों को भर लें और इसमें बाज़ औक़ात जाला भी आ जाता है, फिर से छान लिया करें, खराब नहीं होता। 3 पानी ऐसे हैं जिनके साथ शिफा का वादा है। कितने पानी? सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, सबसे अफजल पानी ज़मज़म है। उसके साथ राहत का वादा, उसके साथ शिफा का वादा, उसके साथ पेट भरने का वादा, उसका भूख मिटाने का वादा, ज़मज़म के साथ प्यास का वादा, और फिर ज़मज़म के साथ खात्मा बिल खैर का वास्ता भी है। वुज़ू के 3 घोंट पानी शिफा है, बीमारियों का इलाज है। कोई आदत ना छूटती हो, घर का कोई मरीज हो, किसी को कोई चीज लग गई हो, इल्लत, कोई चीज ऐसी हो जो नामुमकिन हो, वो नहीं पीता, आप उसकी नियत करके वुज़ू के 3 घूंट पानी पिए। आप खुद अपनी नियत करके पिए। मेरे आका का ये मसनून अमल है, इस अमल के अंदर जान है, इसके अंदर ताकत है, इस अमल में कुव्वत है। ज़मज़म का पानी, उसकी तासीर आप जानते भी हैं, बचपन से बचपन तक सुनी भी है, और उसकी ताकत, उसके कमालात से आप बाखूबी वाकिफ हैं। ज़मज़म। अब बारिश के पानी को थोड़ा सा बयान करूंगा। बारिश का पानी शिफा है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। इससे पहले साइंस कहती थी कि बारिश के पानी में आलूदगी है, हमारी फजाओं में, हमारे वेदर में, फजाओं में आलूदगी है। फरमाया बाद में, क्योंकि अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब का फरमान सच्चा, सारी दुनिया की साइंस की थ्योरियां बदलेंगी, मेरे कमली वाली की थ्योरियां नहीं बदलेंगी कि ये पहाड़ों के दौर का वाकया उस वक्त था जब पत्थर के दौर का वाकया है, अब चांद और साइंस के दौर का वाकया है। नहीं नहीं, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए। मेरे कमली वाले का फरमान हक और सच है। सदक़त या रसूल अल्लाह, हक और सच है। पहले साइंस कहती थी कि इसमें आलूदगी है, अब कहती है कि बारिश को अल्लाह ने कोई ऐसा संभाल के रखा है, ये गोली की रफ्तार, जो गोली की जो रफ्तार होती है, बुलेट की रफ्तार, ये उससे 6 गुना, बाज साइंस की थ्योरी है 8 गुना इससे तेज है। अगर अल्लाह ने आसमान पे तहें ना लगाई होती, तहें इसकी ताकत को तोड़ती हैं,
توڑتی ہیں اور یہاں آ کے ہمیں ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر بارش کا قطرہ گرا ہے، ورنہ ابرہہ کے لشکر کی کہانی بن جاتی، ہمارے گولی یہ پار نکل جاتی۔ بارش کی طاقت اتنی زیادہ ہے، سائنس کہتی ہے کہ جب بارش کی طاقت اتنی زیادہ ہے، یہ طاقت ساری آلودگیوں کو، یہ ساری غلط چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو جو ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، اس کو توڑ کے رکھ کے جب نیچے آتا ہے یہ قطرہ، تو یہ شفا بن جاتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا بارش کے پانی میں شفا ہے، گھروں میں استعمال کریں، اس کو جمع کرنے کا اہتمام کیا کریں، اس کو جمع کرنے کی ترکیب بنایا کریں۔ اچھا، اس کی بھی ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، زندگی میں ایک دفعہ اسی پہ کر لیں، پھر اسی پانی کو بڑھاتے رہیں۔ آپ چاہیں ہر ہفتے پھر کر لیں، آپ چاہیں مہینے کے بعد پھر کر لیں، اسی پانی کو ایک دفعہ کر لیں۔ وہ یہ غور سے سنیے گا، 70 بار اول آخر درود ابراہیمی، 70 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 70 بار سورۃ فاتحہ، 70 بار آیت الکرسی، اور 70 بار آخری چارے کل۔ گھر کے چند افراد مل کے پڑھ لیں، آپ خود اکیلا پڑھنا چاہیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 3 دن میں پڑھ لیں، پر اس کی تاثیر کمال ہے۔ بارش کے پانی میں اگر یہ پڑھ لیا جائے اور بارش کے پانی میں اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس پانی کو کھانے میں، پینے میں، چائے میں، دودھ میں، ہنڈیا میں، آٹا گوندنے میں، نہانے میں نہیں، استعمال میں لائیں، زندگی کا قطرہ قطرہ شفا بن جاتا ہے۔ آج تک اتنی زیادہ بیماریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ پرانے بوڑھوں سے پوچھ لیں، یہاں کی جڑی بوٹیاں، آپ تو جڑی بوٹیوں میں مالا مال لوگ ہیں، یہاں کی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن میں شفا ہی شفا ہے۔ بیماریاں بڑھ گئیں، روگ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئیں، اس کی بنیادی وجہ ہے شفا کے راز ہم بھول گئے۔ یعنی لفظ پھر دہراؤں گا، آپ مخلصین بیٹھے ہیں، آپ سچے لوگ بیٹھے ہیں، شفا کے راز لوگ بھول گئے جو میرے آقا نے شفا کے راز بتائے ہیں احادیث میں، مستند اور صحیح احادیث میں، جن کی سچی اسناد موجود ہیں۔ شفا کے راز ہم بھول گئے، شفا کے راز ہم بھول گئے۔ بارش کا پانی شفا کا راز ہے، وضو کے بعد کا پانی شفا کا راز ہے، زمزم تو ویسے ہی ازل سے ابد تک شفا ہے، یہ شفا کا راز ہے۔ اس شفا کے راز کو کبھی نہ بھولیں، اپنی زندگی میں بارش کے پانی کو شامل کریں اور اہتمام سے جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد استعمال لائیں، اور اپنا سال کا کوٹا، میں تو اپنے سال کا کوٹا رکھتا ہوں کیونکہ اب مونسون میں بارش، سامن بادوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کو استعمال کریں، بیماروں کو، مریضوں کو، صحت مند کو، گھر میں اس کا استعمال کریں، بارش کا پانی۔ اور جب بارش ہو، ضروری نہیں آپ کہیں رک جائیں، ضروری نہیں مصلی بچھائیں، ضروری نہیں قبلہ رخ ہو جائیں، دل کو اللہ کے ساتھ لگا دیں۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل کے ساتھ تار لگ جائے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اللہ تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ اللہ میری بیٹی جوان، بیٹا جوان، اللہ اولاد نہیں، اللہ میرا گھر نہیں، اللہ رزق وسیع کر دے، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ وہ وقت نہ لانا میرا کفن سفید ہو، میرا دل سیاہ ہو، اور کالے دل کے ساتھ حاضری ہو نہ میرا مولا۔ جس طرح میرا کفن سفید ہے، اس طرح میرا دل بھی پاک کر دے۔ اللہ سے باتیں کریں، بارش ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ باتوں میں لگ جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بندے ہینڈ فری، یہ ہینڈ فری پہلے تو چلو تاریں لگی ہوتی تھی، اب چھوٹی سی ٹوٹی ہوتی ہے، کان میں ڈالی۔ میں نے ایک دفعہ کے بندے کو دیکھا ایسی باتیں کر رہا، میں نے کہا ذہنی معذور ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر جائے باتیں کریں، ادھر جائے باتیں کریں۔ جب نیا نیا ہینڈ فری آیا، کیا یہ باتیں کر رہا، پتہ چلا اس کی تار لگی ہوئی ہے، اس کے رابطے ہو چکے ہیں۔ ایسی تار لگ جائے، ایسے رابطے ہو جائیں،
اس کے ساتھ ایک آپ کو انوکھی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں. فرمایا جو سکھی ویلے سکھے وقت میں جب راحت کا وقت ہو, کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو, اس وقت اللہ سے باتیں کرے. فرمایا کہ جب اس کو پریشانی ہو جائے, دکھ ہو جائے, اور وہ پھر اللہ سے باتیں کرے, فرشتے کہتے ہیں مولا مانوس آواز ہے, ایسی آواز ہے جو پہلے نے سنی ہے. فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں, فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں. یہ وہ بندہ تھا جب کوئی دکھ نہیں تھا, کوئی غم نہیں تھا, اللہ آپ سے باتیں کرتا تھا. آج اس کو غم, آج اس کو پریشانی, آج اس کو دکھ ہو گیا ہے, آپ سے باتیں کرتا ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے بار بار سفارش کرتے ہیں, اور پھر اس کی برکت سے اللہ کام بنا دیتا ہے. باتیں کرنا شروع کر دیں, اللہ سے باتیں کریں دل ہی دل میں. کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جیسے بارش کے وقت کی گھڑی بتا رہا ہوں, کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے, کوئی ساعت ایسی ہوتی ہے, کوئی لمحہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک پل میں سارا کچھ قبول ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ کے لیے, اور بعض اوقات اس کی شہنشاہیت بڑھ گئی ہے, بڑھی ہوئی ہے, اور بڑھی ہوئی ہے, اور بڑھی رہے گی. اللہ پر نسلوں کے لیے فیصلے کرتا ہے. فرشتوں لکھو اس کی 2 نسلیں, فرشتوں لکھو اس کی 4 نسلیں, اس کی 5, اس کی 7, اس کی 9. اس کا بھی واقعہ سناتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے بڑی سہولت میں, بڑی راحت میں, رزق کی وسعت میں بہت, لیکن یوں مرتے ہیں سارا وقت ختم. آپ کے پاس واقعات ہوں گے اور آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سارا وقت ختم, سارا وقت ختم, سارا وقت ختم. کہتے ہیں جی وہ اپنا وقت ساتھ لے گیا, اوپر سے فیصلے چھوٹے کروائے تھے, فیصلے بڑے کروانے ہیں. پھر دنیا جہان ساری کے ساری جتنی مہنگائیوں کے فیصلے ہو جائیں, جتنے مہنگائیوں کے طوفان آ جائیں, اللہ تجھے کھلائے گا, پلائے گا, نسلوں کو پہنائے گا, رزق عزت دولت کے برکتوں کے دروازے اللہ تجھے دکھائے گا. اللہ سے فیصلے کروانے ہیں ان قبولیت کی گھڑیوں میں. یہ بارش کا لمحہ قبولیت کی گھڑی, زمزم کو پیتے ہوئے قبولیت کی گھڑی, بارش کا پانی پینا اللہ کے ہاں شفا, وضو کے 3 گھونٹ شفا, کعبہ کو دیکھنے میں قبولیت کی گھڑی, گنبد خضرا کو دیکھنے میں قبولیت کی گھڑی, قرآن کو دیکھنا قبولیت کی گھڑی, قرآن کو پڑھنا قبولیت کی گھڑی, اور قرآن کو سفارش کیا کریں. اللہ سے میری سفارش کر دے, میری یہ کام بنوا دے. اس پہ بھی حدیث بتاتا ہوں. آقا کا فرمان ہے سورت تبارک الذی, سورت ملک, فرمائے یہ جھگڑالو سورت ہے, یہ جھگڑا کرتی ہے. سورت ملک جھگڑالو سورت ہے, یہ جھگڑا کرتی ہے. میں کیسے, جو اس کو پڑھے گا, جو اس کا ایک اور فائدہ بھی بتاتا ہوں انوکھا, جو اس کو پڑھے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گی, یا اللہ مجھے یا تو اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی مغفرت کر دے. قرآن کو منت کیا کریں, قرآن ہماری سفارش کر اللہ کے ہاں, قرآن ہمارے مسئلے پہنچا اللہ کے ہاں, اللہ کی بارگاہ میں ہماری مسائل اور مشکلات میں ہمارے کام بنوا دے. سچ بتاؤں قرآن کام بنواتا ہے, قرآن مسائل حل کرتا ہے, اور پوری روایات میں مستند باتیں بتا رہا ہوں. قرآن سفارشی بھی ہے, سفارش کرے گا یا پھر قرآن پکڑوائے گا کہ یا اللہ ساری زندگی اس نے مجھے دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, اس نے مجھے سوچا نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, اور بات کہاں کی کر رہا ہوں, اندرون سندھ کی سخت ترین گرمی. اچھا اگر گرمی نہ ہو تو آم آپ کے پاس کیسے پہنچے, آپ جیسا ماحول ہو آم کیسے پکے. دنیا کہہ رہی ہے گرمی ہے, گرمی ہے. اللہ والے گرمی ہوگی تو کھجور پکے گی, گرمی ہوگی تو آم پکے گا. اس کریم نے اپنا نظام, اور اگر گرمی ہو جائے تو یہاں آڑو بھی جل جائے, خوبانی بھی جل جائے, آپ کی پٹی میں جو پھل ہیں. اللہ نے ہر چیز کا توازن رکھنا ہے, توازن رکھنا ہے. 18 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی, بجلی نہیں ہوتی. کہنے لگے میں بڑے سکون سے سوتا ہوں, سارے چیختے ہیں, کھڑکیاں کھولتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, میں سکون سے پسینہ پسینہ اٹھتا ہوں, بہترین پرسکون نیند. کہنے لگے پھر مجھے چھیڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, اٹھ تو کیوں سو رہا ہے, ہم اگر اپنی ضرورت تو پھر تو کیوں سوتا ہے. کہا میں وہاں ملازمت کرتا تھا, ہم نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا, 3-4 افراد تھے, میں سکون سے سو جاتا تھا, وہ سو نہیں سکتے تھے. آخر ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے, اب راز سنیے گا ذرا, سکون کا راز.
एक दिन मुझसे पूछने लगे तो सुकून से सोता है, क्यों सोता है? इस सुकून की वजह कहा मेरे पास एक राज है, वो राज ये है जो सूरत मुल्क पढ़ेगा वो कब्र में सुकून से सोएगा। जो सूरत मुल्क सदियों सैकड़ों हजारों लाखों अब्दुल अबद की जिंदगी है उस पे सुकून दे सकती है, वो सूरत मुल्क चंद घंटों के बिस्तर की नींद पे सुकून नहीं दे सकती। इसे वो कहने लगे कि मैं मुझे सुकून नहीं दे सकती। कहा मेरा यकीन है जब भी मैं पढ़ सोता हूं मैंने सूरत मुल्क याद कर ली है, जब सोता हूं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, सूरत मुल्क पढ़ के ऐसी जबरदस्त नींद आती है। फरमाया सूरत मुल्क पढ़ने वाले को आके फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगे, और सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जिंदगी का निजाम ऐसा राहत का चलेगा, ऐसा राहत का कमाल है। सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा बता रहा हूं, सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा है। अच्छा फिर मुझे भी पता नहीं था, सच पूछे ज़हन में फौरन ख्याल आया ये बंदा सच कह रहा है। जो कब्र में राहत का जरिया बने इसे इस्तिंबात कहते हैं, फुकहा की दुनिया में इस्तिंबात कहते हैं और कियास कहते हैं। इस्तिंबात और कियास, जो कब्र में राहत दे मरने से ही कहते हैं, वो बद्दू कहते हैं। देहातों में बोली जाती है इंसान की जिंदगी की जब जरूरत होती है हर चीज सीख जाता है। मेरे पास बाहर मुल्क के फोन आते हैं, खारियां गुजरात कश्मीर की ये पट्टी यूरोप में बहुत ज्यादा है, ये एक पट्टी है, ये खारियां गुजरात ये सारा का सारा मीरपुर आजाद कश्मीर वाला मीरपुर ये पट्टी, तो वो अपनी बोली बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। जिंदगी में सीखने के लिए ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गोरा हैरान हो जाता है। तो क्या हम दुनिया आखिरत की राहत पाने के लिए सूरत मुल्क नहीं बोल सकते, सूरत मुल्क नहीं सीख सकते? आज सारे फैसला करें, मैं भी करता हूं कि सूरत मुल्क इंशाल्लाह याद करेंगे और सोते वक्त सूरत मुल्क जो है वो पढ़ के सोएंगे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाती थी तारिक मैंने सूरत मुल्क के निसाब पढ़े हैं, 70 पता नहीं कितने वो निसाब पढ़ती थी, और फरमाने लगी मैंने अपनी आखिरत और अपनी कब्र के लिए निसाब पढ़े हैं, और वाकई बाद अज़ विसाल उनके वो निसाब और वो आसार, उनके वो निसाब और आसार जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले, 70। तो आप एक दफा पढ़ के सो जाएं, अगर राहत की नींद, सुकून की नींद, टेंशन से निकलना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ के सो जाएं। मुश्किल है कोई? बोले कोई मुश्किल है? बहुत आसान है कि सूरत मुल्क आपने पढ़ के सोना है। अब एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे। अभी मैं बैठा था यहां तो मैंने ना सरसों का तेल हथेली पी लिया, अभी अच्छा खासा लिया, छोटी उंगली से दाएं नाक में ना मैंने तेल डाल के और सरसों का तेल भी ले आए। कहने लगे हमारे यहाँ घानी वाला तेल है और है भी लाजवाब, पता करता है कि नाक में कोई चीज गई है। आपको मैं तरीका बता रहा हूं, जरूर कीजिएगा। ऐसे करके ना नाक में डालें और खींचें, डालें और खींचें 4 5 6 दफा, 7 दफा इधर, फिर उंगली 5 6 दफा इधर, ये डालें और खींचें। उसके बाद इसको बहुत फिर टिश्यू से साफ भी कर लें, कुछ बाहर निकले। और अगर ये सोते वक्त करें तो अंदर जाएगा। अभी हज से वापसी में मेरे बेटे को ना खांसी वो होता है, कोई वायरस वगैरह थोड़ा सा, तो वो नजला जुकाम, मैंने एक दिन कहा 2 दिन कहा, मैं कहता रहा बेटा सो जा, मेरे साथ सो जा। मैंने कहा सरसों का तेल लिया, उसके नाक में मैंने डाला, मैं कहा 2 मिनट में होगा, ठीक हो जाएगा। सारा सिस्टम अंदर की ट्यूनिंग सर्विस देख तुझे कैसे होती है। उसकी खांसी कहां गई, उसका नजला कहां गया, उसका जुकाम कहां गया, उसका रेशा कहां गया। ये तो छोटा फायदा बता रहा हूं, इससे बड़ा फायदा बताता हूं, वो गौर से सुने। पहले दौर में जितने दिमागी काम करने वाले लोग थे, दिमागी काम, याद रखिएगा, एक मैं राज बता रहा हूं, जिस्मानी काम करने वाले को हमेशा थकने के बाद पुरसुकून नींद आएगी, दिमागी काम करने वाले को थकने के बाद पुरसुकून नींद अगर आए तो वो किस्मत वाला है।
तो दिमाग जब थका हुआ होता है नींद नहीं आती, दिमाग जब थका हुआ होता है नींद नहीं आती, जिस्म थका हुआ होता है बड़ी जबरदस्त नींद आती है। आपका ये तेल डालना आंखों को रोशन करेगा, आपकी 10 साल उम्र छोटी हो जाएगी। मसलन आप 70 साल के हैं, लोग 60 साल कहेंगे, 55 साल कहेंगे। दिमाग रोशन होगा, इंतहाई इंतहाई, आंखें तेज, नजर तेज, कानों के मसाइल हल। ये जो नाक का सिस्टम है ना, नाक कटना सारी जिंदगी की जिल्लत है। नाक के साथ अल्लाह ने इज्जत का निजाम भी रखा है। अरब में पहले नाक काटते थे। एक साहब आए बाहर से, उनकी नाक कटी हुई थी, फिर वो सोने की नाक लगाते थे। अगर किसी और धात की लगाएं तो इन्फेक्शन गल जाता था। तो नाक आज भी सेहत के लिए, अगर आप दिमाग रोशन, आंखें रोशन, कानों की समात ठीक, दिल दिमाग के जज्बे ठीक, आसाब ठीक चाहते हैं, इस नाक को और नाफ इसको तेल दे और लाजम दे, और इस नियत से दे कि या अल्लाह ये सेहतमंद जिस्म है, इससे मैं खिदमत करूंगा, 2 काम करूंगा, इबादत करके तुझे राजी करूंगा, खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। मैं इसलिए सेहतमंद जिस्म तुझसे चाहता हूं, इसलिए सेहतमंद तुझसे चाहता हूं। मेरे यहां हवेली में ना सिख हजरात आए, सिखों के बड़े आए, दावत थी मेरे यहां हवेली में 4 मजाहिब की। सिखों के बड़े थे, हिंदुओं के मुखी थे, ईसाई थे और मुसलमान, ये सारे हजरात थे। वहां कोई 50, 60, 70 लोग जमा हुए। वहां एक सिखों के बड़े आए, कहने लगे मैं अभी जर्मनी से आ रहा हूं, मेरा सफर था, जर्मनी से आ रहा हूं। तो मैंने कहा पांव की तेल की मालिश करें। उन्होंने साथ भतीजा था सिख, उसको कहा पांव के तेल की मेरी मालिश कर। जब उससे जबरदस्ती उठाया, के दस्तरखान लगा हुआ था, उन्होंने सब्जियां खानी थी, उनके लिए सब्जियां पकी थी, मुसलमान के लिए गोश्त पका थे, तो उनका जबरदस्ती उठाया। उठे, क्या हुआ? कहा ऐसी कोई बेहोशी की नींद आई, सारी जर्मनी के सफर, फ्लाइटें, फिर एयरपोर्ट, फिर सफर, सारी थकान उतर गई। छोटे छोटे राज हमने जिंदगी से निकाल दिए। बारिश का पानी निकाल दिया, तेल लगाना निकाल दिया, सूरत मुल्क का रूहानी राज जिंदगी से निकाल दिया। सारा कुछ निकाल के कहते हैं हाई टेंशन, हाई टेंशन। याद रखिएगा, जो लफ्ज बोलू में आता है, किस पे आता है? किस पे आता है? कागज कलम पैड दे मुझे। जो लफ्ज बोलू में आता है, बोलू में, वो वजूद में आता है। किस पे आता है? वो वजूद में आता है। जो बोलू में आता है वो वजूद में आता है। मैं एक जगह गया तो दरिया सिंध के किनारे कश्ती पे मेरी गाड़ी भी, बंदे भी, हमने कश्ती पार करनी थी। गाड़ी भी कश्ती में, बंदे भी कश्ती में। अच्छा, वो जो कश्ती का मल्लाह था, उसने पैसे लिए पार उतारने के। हर थोड़ी देर बाद कहे पीर सैयान नहीं टेंशन है, हर चीज को टेंशन कहे। नजला उसको हो रहा था तो थोड़ा सा पानी कर रहा था, आगे पीर से यही टेंशन को गोली रसा जा, हर चीज में टेंशन। मैं लफ्ज उसको सुन रहा था तो मैंने कहा जो बोलू में आता है वो वजूद में आता है। टेंशनें तो हमने खुद पाली हुई है। इस फितरी जिंदगी को छोड़कर, इस हकीकी जिंदगी को छोड़कर, जिस फितरी और हकीकी जिंदगी में ना कोई मर्ज है, ना कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है। आए फिर एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं। वो चीज है आमला, वो चीज है आलू बुखारा खुश्क। मुंह में आलू बुखारा खुश्क मुंह में रख के ना चूसें, टाफी की तरह चूसें, दिन में 8-10 चूस लें। हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जहां नाकाम हो गई हों, हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जहां नाकाम हो गई हों और इंसान परेशान हो के आप क्या करो? एक दूसरा, जिसका पेट वेट बहुत बढ़ गया हो। एक साहब है, मैं उनके पेट पे हाथ रखता हूं, कहता हूं हंसो, वो नहीं हंसता, पेट हंसता है।
پیٹ نہ بڑھنے دینا. مجھے اس تھوڑے سے بڑھے ہوئے پیٹ کا ہمیشہ فکر رہتا ہے. پیٹ نہ بڑھنے دینا. وزن بڑھنا، اور وہ شخص جس کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، چربیلے اور یوریک ایسڈ، اور جسم میں معدے میں تیزابیت ہو، کوئی دوائی اثر نہ کرتی ہو، جو کھاتا ہو جلن ہو، تیزابیت ہو، آلو بخارا ٹافی کی طرح منہ میں رکھ کے ہلکا ہلکا چوستے رہیں. پھر دوسرا رکھ لیں، دن میں 8-10 آلو بخارے. کچھ ہی دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے آپ کے جسم سے یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مسائل ایسے ختم ہو گئے. چھوٹی فطری چیزیں، چھوٹے فطری ٹپس. ایک ٹوٹکا اور دیتا ہوں آپ کو. تو ٹر جو آئیں میں کو نہیں ٹھاندی میرے در تو آتے خالی ون. تو ٹر جو آئیں میں کو نہیں ٹھاندی میرے در تو آتے خالی ون. ہن کچھ نہیں پیا تے کو کیا دے ماں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون. ہن کچھ نہیں پیا تے کو کیا دے ماں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون. میں کو ہال نہ رہے جو روندا گے، ذری کھیل دی شکل دکھالی ون. مچا راہج پوی رات سجن میرے خون دا دیوا بالی ون. سمجھ آئی ہے؟ بہت آئی ہے. متا راہج پوی رات سجن میرے خون دا دیوا بالی ون. تو ٹر جو آئیں میں کو نہیں ٹھاندی میرے در تو آتے خالی ون. یہ چھوٹے ٹپس ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک بات کہی تھی، اللہ سے کچھ باتیں کہی تھی. رب اغفر لی حبلی انکا انت الوہاب. قرآن کی آیت ہے. کس پارے میں ہے؟ کوئی حافظ بتائیں. 23ویں پارے میں ہے، سورۃ صاد میں ہے. میں گیا اپنے کالج میں جہاں پڑھتا تھا، تو وہ پہلے لیکچرر تھے، اب پرنسپل بنے بیٹھے تھے. ترقی کرتے کرتے پتا چلا کہ آپ تو وظیفے بتاتے ہیں، ماشاءاللہ. یہ بڑی محبت تھی. مجھ سے کہنے لگے جب سے پرنسپل بناؤں لوگ بہت مجھے پریشان کر رہے ہیں اور مجھے ہٹانا چاہتے. میں کہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیں، آپ کو کبھی کوئی زوال نہیں دے گا. رب اغفر لی حبلی ملکا لا ینبغی احد من بعدی انکا انت الوہاب. میری زیر زبر اگر کمزور ہو تو آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا. میں نے کہا آپ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یہ آیت پڑھ لیا کریں. یہ آپ کو میں خصوصی دے رہا ہوں. کسی جاب میں ہے، کسی عہدے میں ہے، یا کسی ایسے شعبے میں ہے، یا کسی ایسے کمال میں ہے کہ اللہ نے کسی فقیر کی دعا کی برکت سے کمال دے دیا، اور آپ حاسدین پیچھے ہیں اور آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کو زوال دیں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ جو ملک، جو حکومت، جو اقتدار جنات کا، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، مچھلیوں پہ، کائنات پہ مجھے دیا، پھر اس کے بعد کسی کو نہ دینا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے سلیمان، میں نے تجھے ہی دیا ہے. اور اس کے آخر میں لفظ کیا آتا ہے؟ یا وہاب آتا ہے. آخر میں وہاب آتا ہے. اب یہ آیت میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ آیت صرف 11 دفعہ پڑھ لے. ایک دفعہ ایک جگہ مجھے ملے، مجھے کہنے لگے با عزت با وقار ریٹائر ہوا ہوں، کوئی حاسدین دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور مجھے اللہ نے وہ عزت دی، وہ کمال دیا کہ اب میں حیران ہوں اس آیت کی تاثیر. وہ تو بہت زیادہ بتانا چاہتے تھے، مجھے جلدی تھی، لیکن انہوں نے وہ آیت کی تاثیر، یہ آیت میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اس آیت کو یاد کر لیں. اچھا کسی کو یہ آیت یاد نہیں ہے نا، صرف 11 دفعہ ہر نماز کے بعد یا وہابو اس آیت کا تصور کر کے پڑھ لیں. اور حدیث سنو، حدیث میں آتا ہے میرے بندے، اگر رونا نہیں آتا چلو رونے والی شکل بنا لے. ساری دنیا بہروپیے کو رد کرتی ہے، ساری دنیا بہروپیے کو رد کرتی ہے، ساری دنیا روپ مانگتی ہے، بہروپیہ نہیں مانگتی. میرا اللہ کہتا ہے چلو رونے والی شکل بنا لے، مجھے یہ بھی قبول ہے، میں تب بھی قبول کروں گا، تب بھی قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام
क्या बहरूपिए, आखिरकार जन्नती बन गए सारे। तो इमाम जाफर सादिक फरमाया बैठे दुआ मांग रहे हैं मिना की वादियों में, और मुश्किलात के मारे हुए, गमों के मारे हुए, दर्दों के मारे हुए सोजो साज के साथ आमीन कह रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं मुसलसल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुसलसल पढ़ रहे हैं। मौला गुलाम तेरे, मौला बंदे तेरे, मौला आका तू, फिर दर किसी और का। अब अपने दर से खाली ना लटा, अपने दर से खाली ना लटा, सारे जहान की ठोकरें खा खा के तेरे दर पे आए हैं, अपने दर से खाली ना लटा। ले मेरे ख्याल में इय्याका नअबुदु शुरू हुई, बारिश फिर शुरू हो गई है। अब विजदान की कैफियत से अव्वल एक दफा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब सूरत फातिहा पढ़े और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर झुका के, हाथ उठाना जरूरी नहीं, सर झुका के अपने पहले 11 मकासद को जहन में रखें। गौर से मेरी बात को सुने। कितने मकासद, कितने मकासद बोले तो सही। उलझन, रिस्क है, औलाद है, जिंदगी है, कामयाबी है, सेहत है, काला जादू है, काले लोग हैं, काले रोग हैं, जिंदगी की नाकामियां हैं, बंद गलियां हैं, दर दर का तड़पना है, दर दर का सिसकना है। कोई ऐसा रोग है जो हल नहीं हो सकता, कोई ऐसी मुश्किल है जो नामुमकिन है, दुनिया ने सताया हुआ है। उसने मुंह पे हाथ फेर के कहा था तेरा जादू कोई तोड़ के दिखा दे तो मुझे गोली मार देना। मेरा रब काबा की कसम कह रहा हूं, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मैंने अपनी जिंदगी में मसाइल को हल होते देखा, जिंदगी में नाकामियों को लुटते देखा, और दुश्मन को मैंने हटते देखा, और पिस्पा और परेशान और नाकाम होते देखा। और अल्लाह की मदद, उसकी रहमत, उसकी अता, उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी को आंखों से उतरते देखा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो मीना की वादी का तस्वीर कर लें, औलिया सालिहीन वहां कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, गौस भी थे, कलंदर भी थे, नकीब भी थे, नजीब भी थे, अबरार भी थे, औताद भी थे, सारे सालिहीन थे। एक वली कामिल आया और वो इमाम जाफर सादिक, उन्होंने आके दुआ मांगी, और दुआ मांगते कहा सूरत फातिहा पढ़ी जैसे आज आप पढ़े बैठे हैं, और इंतजार और बेचैन हैं आप कि कौन सा लम्हा ऐसा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अपने मकासद का तस्वर करके हाथ नहीं उठाना, सर झुका के, डूब के, तवज्जो से, ध्यान से, बावाज़ बुलंद, पूरे सोच के साथ, पूरे इश्क के साथ हमने अपने मसाइल के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आओ इस कबूलियत का पहले मैं शर्तें बता दूं। यहां सफेद बालों वाले बैठे हैं जिनसे अल्लाह हया करता है, यहां परदेसी बैठे हैं, परदेशियों के आने से दुआएं कबूल होती हैं, यहां बारिश के कतरे हैं, बारिश के दौरान दुआएं मांगे कबूल होती हैं, यहां बच्चे बैठे हैं जिनकी वजह से अल्लाह रहमतें भेजता है। फरमाया अगर बच्चे ना हो और बेजुबान ना हो, मैं जमीन को तांबे का बना दूं, आसमान से कतरा ना हो और तुम तड़प तड़प के मर जाओ। ये बच्चे बैठे हैं, यहाँ नेक इबादत गुजार बंदियां बैठी हैं, यहाँ रोने वाले बैठे हैं, यहाँ आंसू बहाने वाले बैठे हैं, यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अभी हज करके आए हैं। हदीस में आता है हाजी जब तक घर ना पहुंचे दुआएं कबूल होती हैं। एक हदीस है यकुम ज़िल हज तक से लेकर आखिर ज़िल हज तक, और एक हदीस में है रबीउल अव्वल के आखिर तक हाजी की दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ मुस्तर बैठे हैं, यहाँ बेचैन बैठे हैं, किसी के जरिए से कुछ भी नहीं बैठे, अकेली इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन काफी है, शाफी है, काफी है और शाफी है। आया अपने मसलों का, अपनी परेशानियों का, अपने हालात का, अपनी उलझनों का, अपनी तकलीफों का, अपनी नाकामियों का, अपने मसाइल का, अपनी जिंदगी की ठोकरों का तस्वर करके, अगर एक तस्वर और कर लें काम ज्यादा बनेगा, पूरी उम्मत का तस्वर कर ले, पूरे आलम का तस्वर कर ले, अपनी नस्लों का तस्वर कर ले। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, अपनी नस्लों को कभी गरीब फकीर मंगता छोड़ के ना जाना।
आज अल्लाह ने रिस्क वुसअत का दिया है, आज खुशहाली दी है। अपनी नस्लों को गरीब, फकीर, मंगता, भिकारी, साइल छोड़ के ना जाना। आप कहेंगे वो कैसे? तो उसके लिए बंगले, कोठियां, जमीनें, माल, दौलत, जवाहरात बनाने होंगे। मैंने कहा नहीं, बंगले, कोठियां, माल, दौलत, जवाहरात बनते हुए लोग छोड़ गए। आपने कई वाकयात देखे होंगे, उनकी नस्लों को मंगता फकीर देखा, सब लुट गया, सब लुट गया, सब खुट गया, सब खत्म हो गया। पर बरकतें क़यामत तक नस्लों के साथ रहती हैं, नस्लों के साथ रहती हैं। अपनी नस्लों को ऐसे अमाल दे के जाएं जिनके साथ अल्लाह के वादे हैं। मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। सूरत फातिहा के साथ वादे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ वादे हैं। इज्तिमाई जब सूज और साज के साथ मांगा जाए तो वादे हैं, तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा इज्जत के साथ, पहनाऊंगा इज्जत का लिबास, और तुम्हें नस्लों को पाल के दिखाऊंगा, जिल्लत से बचा के दिखाऊंगा। ये इज्तिमाई अमल क्यों जुमे की फजीलत ज्यादा है? इज्तिमाई अमल है। क्यों जुमे की फजीलत ज्यादा है, मजमा ज्यादा होता है? ये इज्तिमाई तौर पे आज बैठ के हम दिल की गहराइयों के साथ, हमने दरूद पाक भी पढ़ा है, हमने सूरत फातिहा भी पढ़ी है, अब हमने इय्याका नअबुदु, और दिल में जो मुरादें लेके आए हैं, दिल में आशे लेके आए हैं, दिल में उम्मीदें लेके आए हैं, दिल में दर्द लेके आए हैं, दिल में ख्वाहिशें लेके आए हैं, दिल में जिंदगी का कोई दर्द लेके आए हैं, आज उन दर्दों को सामने रख के उस करीम के सामने गिड़गिड़ाएं, भिखारी बने, मोहताज बन के पढ़े, साइल बन के थोड़ी देर पढ़े, और थोड़ी देर पढ़ के फिर अल्लाह के सामने अपनी फरियादें भी साथ पेश करें। मुझे यकीन है उसकी शान करीमी पे, मुझे एतमाद है उसकी शान करीमी पे, मुझे इंशाअल्लाह एतमाद और 100% यकीन। आपको यकीन है? ढीला ढाला है? ये बताएं, अगर बंदूक हाथ में हो और निशाना भी बिल्कुल सामने हो और हाथ ऐसे 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 हिल रहा हो, तो बंदूक निशाने में लगेगी? निशाना है? बोले, हाथ ऐसे 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 हिल रहा हो, निशाना यकीन के साथ, वमन यतवक्कल अलल्लाह, आओ मुझ पे एतमाद करके देखो, फहुवा हस्बहु, बस मैं फिर तुम्हारे लिए काफी हूं। करबला की उन जिंदगी में इमाम हुसैन ने कहा था, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, और अल्लाह काफी हुआ। आज हुसैन जिंदगी में जिंदा है, ताबिंदा है, शादा है। यकीन के साथ इस अमल को करना है, बेयकीनी के साथ नहीं, यकीन के साथ करना है। डूब के बावाज़े बुलंद अपने मकासद का तस्वर करके अगर 2-4 आंसू आ जाए ना, तो उन सांसों की अल्लाह के यहां बड़ी कीमत है। पढ़ना है तवज्जो से, दर्द की कैफियत के साथ, लिहाजा पढ़ना शुरू करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऊंचा ऊंचा पढ़ें, दिल से पढ़ें, यकीन से पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अपने मकासद का तस्वर करके, अपनी मुश्किलों का तस्वर करके पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सखिया का ये सारे मंगते, ये सारे भिकारी, ये सारे मोहताज तुझे तेरे नाम की कसमें दे रहे हैं, तुझसे तेरा नाम भिकारी बन के मांग रहे हैं। और कुरान का सारा नचोड़ सूरत फातिहा और उसका नचोड़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इनको खाली ना लौटा मेरा आका। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 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 इय्याका नअबुदु व इय्याका, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका,
इय्याक नअबुदु व इय्याक। ऐ अल्लाह आज इस इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से कोई खाली ना जाए, सबकी झोलियां भर दे, सबको बामुराद कर दे, बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे, रिस्क वसी कर दे, ईमान की शम्मा रोशन कर दे। बे अल्लाह इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, 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 इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पूरी सूरत पूरी कर लें। सिरातल लज़ीन। अब आमीन को बहुत ज्यादा दिल की कैफियत से दोहराएं। आमीन आमीन आमीन, डूब जाएं, तवज्जो से आमीन पढ़ें। रिवायात में आता है कि आमीन इसमें आजम है, रिवायात में आता है कि आमीन इसमें आजम है। जो मांगा जाए आमीन के बाद कबूल होता है, जो मांगा जाए कबूल होता है। आमीन मोहर लगा देती है, आमीन दुआओं को लोहे महफूज तक पहुंचा देती है, आमीन दुआओं को अर्शों पे उठा देती है। कोई ऐसा बैठा होगा जो सदका खैरात ज्यादा करता होगा, कोई ऐसा बैठा होगा रोने वाला मिजाज है, किसी का आजिज़ी वाला मिजाज है, किसी का दर्द वाला दिल है, कोई ऐसा होगा जो तौबा करके आया होगा, कोई ऐसा होगा कि जो जहां जाए उस महफिल उसकी वजह से अल्लाह कबूल करता है। और मैं हदीस में आता है, आका का फरमान है, तुम्हारे ज़ौफ़ा की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हारे ज़ौफ़ा की वजह से। कोई बेहैसियत इंसान यहां बैठा होगा, कोई हाथ ही नहीं मिलाता होगा, कोई सलाम भी नहीं करता होगा, कोई कंधा मार के चला जाता होगा, एक्सक्यूज मी मादरत भी नहीं करता होगा, पर रब्बे काबा की कसम उसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं। मेरे आका का फरमान है, तुम्हारे ज़ौफ़ा की वजह से। किसकी वजह से? ज़ौफ़ा, तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से, जिनको दुनिया में कोई बंदे हैसियत नहीं देते, तुम्हारी मददें तुम्हारे ज़ौफ़ा की वजह से होती हैं। कोई ज़ईफ कितने यहां बैठे होंगे और बंदियां ज़ईफ कितनी यहां बैठी होंगी, उनकी वजह से दुआएं कबूल, उनकी वजह से क्या कबूल? उनकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं। दुआ करा दें या कोई एक दो मौती और दे दें? हैं जी, थक गए होंगे आप, थक गए होंगे। वो मिला तो बरसों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया, वो जो उनके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंग जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। न मैं वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। और आखिरी गौर से सुनिएगा, मेरे दिल में था कि कहूंगा उससे, जो दिल पे रंजो मलाल था। जब वो आ गया मेरे सामने, तो न रंज था न मलाल था। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूं, न दिया हूं, न मैं तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूं, न दिया हूं, न मैं तारा हूं,
रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों। ये आपको हैरत अंगेज तोहफा है। 3 मिनट 5 मिनट का अमल है, 3 मिनट 5 मिनट का अमल है। ये आखिरी तोहफा है, आखिरी और हैरत अंगेज तोहफा है। आप दिन में इस अमल को, सूरत वज़्ज़ा को 1 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 40 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, बस सारा दिन उसको वक्तन फवक्तन पढ़ते रहें। मैं यकीन जानिए, मैं साल से बता रहा हूं, आज तक मुझे कोई एक फर्द ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने तलब तवज्जो यकीन से पढ़ी हो और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे काम ना बनाया। मुझे बड़ों से इजाजत है, डाकिया हूं, आपको भी इजाजत दे रहा हूं। बड़ों से इजाजत है, मेरी हैसियत डाकिए की है, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, कोई दावा नहीं कर सकता। वैसे भी मैं दावा नहीं कर सकता। जिस बंदे की 4 बंदों में शोहरत हो, मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी 1 नंबर था या 2 नंबर था, मौत बताएगी दुकानदार था या ईमानदार था। ये मौत पे फैसले होंगे। अल्लाह करे हमें अल्लाह मुखलिस बना दे। मौत से पहले तो वैसे मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदे जानते हो, वैसे आप तो कर सकते हैं। तो शोहरत याफ्ता आदमी 4 बंदे जानते हो, दावा नहीं कर सकता। पर यकीन जानिए, मैंने साल से इस अमल को बताया है। इतना ज्यादा इसकी तासीर, कमाल और फायदा है। असल में मेरी सारी कोशिशों का मतलब यह है, अल्लाह से जुड़ जाएं, मसनून अमाल के जरिए अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। और इसका सिला आपसे क्या चाहूंगा, अपना पेट्रोल, अपना खर्चा, अपनी चीजें लगा के आता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फीस, पैसा अल्लाह भी ऐसे आइंदा भी ऐसे किए रखे, कोई जरूरत नहीं है। उसका पता है मेरे यहाँ एक क्या है, मेरे एक ज़हन में एक चीज है। आपने बसों और कोचों पे सफर किया होगा, होटलों पे बसें और कोचें रुकती हैं, ड्राइवर कंडक्टर का खाना मुफ्त होता है और लाजवाब होता है। क्यों? वो बस की सवारी लेके आया है। अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह 2-4 सवारियां लेके आया हूं, मेरा खाना ऐसे फ्री कर दे, कोई शफकत की नजर फरमा दे। है कुछ नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी रोंदी ही मर जावा हो। भाई यही कमीशन थोड़ा सा यही है कि शायद किसी के जरिए से दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह तेरा पैगंबर नबी हूं और तेरा महबूब तरीन बनना चाहता हूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरे करीब कर दे, मुझसे मांगने वाला, सवाल करने वाला सवाली बना दे, मेरे और करीब हो जाएगा, मेरे और करीब हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और बैत का अमल है, जो हजरात पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे। जो मजीद बैत होना चाहते हैं मेरे साथ बैत के कलिमात पढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 26 बड़ी हस्तियों से मुझे खिलाफत है, 26 बड़ी हस्तियों से मुझे खिलाफत है। तो बैत की तजदीद अमल पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मैंने तौबा की शिर्क से, बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों, तेरी हर नाफरमानी से। अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात, तिलावत और नमाज का एहतमाम करते रहें और अपनी नज़र रखें हलाल हराम, जायज़ नाजायज़ पे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है जो राब्ते में रहता है। मैं भी राब्ता याद दहानी का मोहताज हूँ। तो ये दर्स, तस्बीह खाने आना, अपने मकाम पे मोबाइल नेट किसी भी ज़रिए से सुनना, हम सब राब्ते के मोहताज हैं। ठीक है ना जी। अब दुआ करते हैं, दुआ के बाद निकाह है और इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन या अव्वलल अव्वलीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन
या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाह, जितनी तेरी बंदियाँ और बंदे आए हैं सबकी हाज़री कबूल फरमा, सबकी हाज़री कबूल फरमा, सबकी हाज़री कबूल फरमा और मुश्किलें हल फरमा। कामिल ईमान दे दे, कामिल इखलास दे दे और कामिल अखलाक, बरकत और आफियत अता फरमा। अल्लाह, अपनी नज़र में हमें महबूब बना दे और हमारा महबूब बन जा। इल्लत, इल्लत, जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत, जिल्लत और किल्लत से बचा। नाकामियों के दरवाजे बंद कर दे अल्लाह, नाकामियों के दरवाजे बंद कर दे अल्लाह। हमारे बादशाहों की खैर कर दे, वजीरों मुशीरों की खैर कर दे, अमीरों फकीरों की खैर कर दे अल्लाह। सब की खैर, सब का भला, सब की खैर, सब का भला। परवरदिगार आलम, हमारे उठे हाथ कबूल कर ले और हमारी फरियादें पूरी कर दे अल्लाह। कोई रिस्क मांगता है, कोई सेहत मांगता है, कोई आफियत मांगता है और कोई बरकत मांगता है। हम सबको बरकतों के खजाने अता फरमा अल्लाह। हमारी नस्लों को फक्र और कुफ्र से बचा, फक्र और कुफ्र से बचा, फक्र और कुफ्र से बचा। तेरे हबीब ने दुआ मांगी है, पनाह मांगी है अल्लाह। ये मजमा सारा तेरी बंदियों और बंदों का, और जहां मजमा बैठा दुआओं के लिए आमीन कह रहा अल्लाह, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी जरूरतें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां दूर फरमा अल्लाह। हमारी सारी हाजरियां अर्शों पे कबूल फरमा कर उस पे मोहर लगा दे ऐ करीम आका। उठे हुए कदम, हर हर कदम पे नेकियां भी दे दे और अपनी रजा भी दे दे, नेकियां भी दे दे और अपनी रजा भी दे दे अल्लाह। कोई ऐसा बंदा हो इसमें होगा जो बिल्कुल कमजोर होगा, ज़ईफ होगा, उसकी जेब कमजोर, उसका जिस्म कमजोर, उसका घर कमजोर, उसका रिस्क कमजोर, उसकी सेहत कमजोर। तेरे हबीब का फरमान है और तेरा फरमान है, तुम्हारे ज़ौफ़ा की मदद से तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हारी ज़ौफ़ा की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है अल्लाह। उन ज़ौफ़ा की वजह से हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा, हमारे मसाइल हल फरमा, हमारी मुश्किलें दूर फरमा, हमारी नाकामियां खत्म फरमा, दिल की मुरादें पूरी फरमा, दिल की मुरादें पूरी फरमा, आफियत अता फरमा। अगर कोई अजाब आने वाला है हमारी वजह से अल्लाह, आज इस मजमे की, इस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की सदाओं की बरकत से, इस या वहाबों की अदाओं की बरकत से अल्लाह आने वाले अजाब को टाल दे, हत्ता कि इतना डाल दे कि मुसलमानों तक भी ना अजाब आए और काफिरों तक भी अजाब ना आए। अल्लाह, हमारे दो भाई हैं, एक गैर मुस्लिम है, एक मुसलमान है। गैर मुस्लिम इंसानी भाई हैं और मुसलमान ईमानी भाई हैं। अल्लाह, सबको कलमा दे दे, सबको हिदायत दे दे और कलमे वाली मौत दे दे। अल्लाह, किसी के कर्जे, किसी के रिश्ते, किसी की बीमारियां और किसी की तकलीफें, सबकी नाकामियां खत्म कर दे, सबके हालात बेहतर कर दे। अल्लाह, कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसके हाथ वो होंगे जिनके उठे हाथ तो रद्द नहीं करता अल्लाह, उन हाथों की वजह से सबकी दुआएं कबूल फरमा दे और सबके मसाइल हल कर दे। अल्लाह, जो दिल में उम्मीदें लेके आए हैं मुंह पे हाथ फेरने से पहले सबकी उम्मीदें पूरी कर दे, सबकी मुश्किलें हल कर दे और सबकी नाकामियां दूर कर दे। अल्लाह, जो इस दुनिया से रुखसत हुए उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी मगफरत फरमा दे। उन अनकरीब आने वाले हैं, हम सबके को अल्लाह आखिरी वक्त में कलमा नसीब कर दे, हम सबको आखिरी वक्त में कलमा नसीब कर दे। अल्लाह, हमारी मुश्किलें हल कर दे, हमारी नाकामियां दूर कर दे। बस बिन मांगे अता फरमा, बस बिन मांगे अता फरमा, बस बिन मांगे अता फरमा। जो पहले मांगा था वो भी अता फरमा, जो अब मांगा वो भी अता फरमा और जो आइंदा मांगेंगे वो भी अता फरमा। आमीन, 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम
وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.